हमारे दिन की शुरुआत -20 डिग्री टेम्परेचर से हुई। चारों ओर बर्फ ही बर्फ था और हम इतने ठंड में सो पाए बस इस गैस हीटर के कारण। तो चलिए फिर थोड़ा घूमते हैं काजा। स्पीति ऐसा है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ सर्दियों में तो। So good morning guys, this is the view from our hotel right now, you can check this। मॉर्निंग के 8 बजे है अभी और टेम्परेचर -18 से हिल रहा ही नहीं है। तो यहाँ से अभी मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ काजा का व्यू देखने के लिए। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। Kaza, at the elevation of 12,500 feet, is known as one of the coldest towns in India. January is the coldest month of the year with average temperature of -25 degree. Right now, the temperature is almost 20 degree and I am flying this drone without hand gloves, which is really tough. My hand were literally shaking. I don't know what happened within 2 minutes. मुझे अचानक से चक्कर आने लगी। मैंने ड्रोन वापस बुलाया। I was in need of oxygen and water badly. I landed my drone and went inside house. I put my hand in hot water for some time. I drank some liter of water and went to sleep. I was not in condition to shoot this thing as I was in need of rest. So recently I traveled to a place which was in my travel bucket list from many years. I was so surprised by seeing such beautiful landscapes. I never thought these 8 days will be so amazing. So come, let's see how was they. Come watch this beautiful 7-part travel series called Roads to Winter Spiti. ये है तंदूर। पहाड़ी इलाकों में इसका यूज़ खाना पकाने और सर्दियों में रूम का तापमान गर्म करने के लिए किया जाता है। ये तंदूर आपको मोस्टली होम स्टेज पर ही देखने मिलेंगे, जहां आपको आपके घर का फील मिलेगा। हम यहाँ नूनो होम स्टे पर रुके हैं काजा में और नूनो अंकल ने काफ़ी अच्छा ट्रीट किया हम सबको। खाना काफ़ी टेस्टी था, रोटी के साथ रॉकेट चटनी। इतने ठंड में चाय तो बनती है बॉस। गरम गरम चाय पीने के बाद हमने वेदर चेक किया जो कि -18 से हिल ही नहीं रहा था। सो यस गाइस, अभी हम यहाँ से निकल रहे काजा से धनकर के लिए। एक्चुअली हम जा रहे थे लांजा, लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से रोड बंद है तो जा नहीं पाएंगे और चल तो नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तो ठीक है, अभी धनकर मॉनेस्ट्री भी देख लेते हैं और आपको अपडेट करते रहूँगा। हमने काजा को गुड बाय बोला और निकल पड़े धनकर की ओर। काजा से धनकर पहुंचने 1 घंटे का समय लगता है और धनकर जाने जो रास्ता है वो काफ़ी एडवेंचरस है। तो चलिए फिर देखते हैं धनकर की खूबसूरती। सो गाइस, हम अभी पहुंच गए धनकर। चलिए देखते फिर धनकर की मॉनेस्ट्री और यहाँ की हिस्ट्री थोड़ी। वाओ, व्हाट अ प्लेस! I was really surprised by seeing such beautiful architecture. The monastery is located between such tall pointed mountains, make it looks more scenic. As the camera are not allowed in monastery, I couldn't show you how beautiful it looks from inside. But trust me guys, it is really an amazing experience to watch such beautiful monastery in white desert.
If you are traveling to Spiti, you must visit to Dhankar, which is between Tabo and Kaza. So now, time to say bye to Dhankar. After exploring Dhankar, we are now going to Tabo. The distance is almost 30 kilometers, so let's go Tabo. सो यस हम अभी पहुंच गए ताबो। तो देखते अभी क्या प्लान है, पहला खाना खाना है या फिर मोनेस्ट्री जाना है। लेट्स चेक। The monastery was established in 996 AD. Yes, it is actually 3-digit year. This is very old monastery and famous monastery in Spiti Lahore district. सो गाइज अभी हमने ताबो मोनेस्ट्री देख लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी से ये मोनेस्ट्री है। यहाँ पे अंदर से काफ़ी सुंदर है, लेकिन शूट नहीं कर सकते, जैसे मोनेस्ट्री में कैमरास अलाउड नहीं है। अब अगर आते हो ताबो काजा तो ज़रूर ये मोनेस्ट्री आ जाइए। हमने ताबो मोनेस्ट्री एक्सप्लोर कर लिया, तो अभी सब लोग को भूख लगी है, तो हेरलिंग जाएंगे लंच करने के लिए। सो फाइनली वी हैव रीच टू हुरलिंग। तो अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे और निकलेंगे कल्पा के लिए। Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. सो गाइस अभी हमने यहाँ पे उर्ली में लंच कर लिया, तो डायरेक्ट कल्पा जाएंगे। ऑलमोस्ट 6-7 हार्स लगेगा जाने के लिए, तो रात हो चुकी होगी। देखते जाते समय कुछ सीन्स मिले तो मैं शूट कर लूँगा। हाँ, ऑलमोस्ट हम स्पीति वैली अभी छोड़ रहे हैं, किन्नौर वैली में एंटर करेंगे। तो थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि ट्रिप अभी एंड की तरफ चली जा रही है। Moved a few times but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. तो हमने स्पीति को बाय बोला इन सैड मोड, बिकॉज मुझे और भी दिन रहना था। ऐसे लगा कि ट्रिप चालू होते ही ख़त्म हो गई, बट यस, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेकर लौट रहा हूँ। Sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Went for the dream, but I got lost. This house I leave, this name. अपने तो आते हुए भी लग गए। ये स्पीलो ने अपना ट्रिप लेने का रख लिया था, आने के टाइम भी जाने नहीं भी। ये स्पीलो एक्सपीडिशन था, ये स्पीलो एक्सपीडिशन था। मेरे को जिंदगी भर स्पीलो याद रहेगा। सो आते वक्त भी रोड ब्लॉक हो गई ड्यू टू बिग लैंडस्लाइड। मुझे लगा नहीं था आज रास्ता खुलेगा, लेकिन थैंक्स टू BRO, उन्होंने जल्दी रास्ता क्लियर किया और हम निकल पड़े। लेकिन और भी ऑब्स्टेकल रास्ते में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। लैंडस्लाइड तो हो गई, अभी शूटिंग स्टोन की बारी थी। एक बड़ा सा पत्थर हमारे गाड़ी के जस्ट सामने से वैली में गया। लकीली वी वेर सेफ एंड वी समहाउ मेड आवर वे एंड कंटिन्यूड आवर फर्दर जर्नी।
तो फाइनली वी सम हाउ रिच स्पीलो। आते समय हमको 2 बार लैंड स्लाइडिंग मिली है, शूटिंग स्टोन्स भी मिले, तो कैसे वैसे हम आ गए यहाँ पे। वी हैव मेड इट टू स्पिलो फाइनली। वापस पिलो में पहला कर लिया है। So we had our snacks and then we traveled to Kalpa. Stay tuned and keep watching Megapixel Journey. Thank you. सो हमारे निखिल भाई का ड्रोन जो है वो क्रैश कर चुका है। बहुत अच्छा शॉट आने वाला था किन्नौर वैली का, लेकिन